Hello, my dear student. Welcome in this lecture number 6 for that topic haloalkanes and haloarenes. We have been learning regarding the nomenclature of haloalkane and haloarene. We have seen some examples of alkyl halide. There are about 8-9 examples in the earlier two lectures. So do watch that videos again. Okay. Now few more we shall learn. Suppose we shall have this type of the compound. CH2Cl2. क्या नाम देंगे इसका? Now remember this CH2 group is known as methylene group. जैसे हम कहते हैं CH3 ग्रुप को मिथाइल, वैसा CH2 ग्रुप को क्या कहते हैं? मिथिलीन. और दो क्लोरीन है तो क्या आ जाता है? मिथिलीन क्लोराइड. What is this? मिथिलीन क्लोराइड. और यहाँ पे आईयूपीएसी नाम आ जाएगा डाइक्लोरोमीथेन. डाइक्लोरोमीथेन. वेरी क्लियर. नंबर देने की जरूरत भी नहीं क्योंकि एक ही तो कार्बन है वहां पे. एंड सपोज आई विल राइट दिस famous compound CHCl3. You know that this is chloroform. Its common name is chloroform. और आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन. What will be the IUPAC name then? Trichloromethane. Very clear. Suppose that I am having one more compound, CCl4. Then this is particularly known as carbon tetrachloride. Its common name is carbon tetrachloride. And what will be the IUPAC name? 4 कार्बन है तो टेट्राक्लोरोमीथेन. टेट्राक्लोरोमीथेन. Okay. Suppose that I am having this compound. CH2 double bond CHCl. Then this compound is a vinyl group, so it is called as the vinyl chloride. PVC पाइप हमको मालूम है. PVC क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है. इससे ही बनता है विनाइल क्लोराइड. ओके. अब इसका आईयूपीएसी नाम अगर देना है then it will be called as 1-chloroethene या क्लोरोइथीन कहा तो भी चलेगा. नंबर देने की जरूरत नहीं है. 1-chloroethene या क्लोरोइथीन. पर यहां पे एक रूल ध्यान में रखना है दोस्तों, that suppose I will write such type of the allyl bromide, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2Br. तो इसका नाम क्या लेंगे? In common system it is known as allylic bromide. It is called as the allyl bromide. This is allyl bromide, no doubt. Okay. But what will be the IUPAC name? So for IUPAC name you have to say that whenever alkene is there, not for alkane this is followed, but only for alkene it is followed. What is followed there? Numbering should be started from nearest end of carbon-carbon double bond. Numbering should be started from nearest end of carbon-carbon. यहाँ पे चकमा खाए जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स. वो सोचते हैं कि नहीं Br जहाँ पे है वहां से नंबरिंग देंगे. So they may write the number here 1, 2, 3. But that is wrong my friend. हमें नंबरिंग प्रेफरेंशियली डबल बॉन्ड जहां पे है फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ डबल बॉन्ड देना है. ये ध्यान में रखो. सो इट विल बी कॉल्ड एज 3-ब्रोमो प्रोप-1-ene. प्रोप-1-ene. 3-ब्रोमो 1-प्रोपीन या प्रोप-1-ene ऐसा नाम उसका आता है.
नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ध्यान में लेने की जरूरत है. नाउ सपोज आई एम हैविंग बेंजीन रिंग, I am having this compound, benzene ring, and I am having this CH2Cl. तो इसका नाम कॉमन मेथड इज सेइंग दैट इट इज बेंजाइल क्लोराइड बिकॉज दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजाइल ग्रुप. बेंजीन रिंग को अटैच हुआ ये C6H5 CH2Cl ऐसा फॉर्मूला है उसका. So no doubt C6H2 group is called as what? Benzyl group. So it is called as the benzyl chloride. This is benzyl chloride. Okay. But in IUPAC method what you will write now? यहाँ पे मीथेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है and therefore is named as क्लोरो. C पहले आता है क्लोरो फिनाइल मीथेन. तो ये डेफिनेटली ध्यान में रखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स चकमा खाते हैं. सपोज दैट इट इज आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिनाइल मीथेन. तो क्लोरोफिनाइल मीथेन का फॉर्मूला ही हमको नहीं आता है. अब मेरे स्टूडेंट्स को, आप मेरे स्टूडेंट को जरूर आता है. My student will definitely answer. Okay? तो ये सही है, क्लोरोफिनाइल मीथेन. ध्यान में आ गया? That is not difficult. अब कभी कभी क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग में अगर समझो मिथाइल ग्रुप है तो उसे हम क्या कहते हैं? That is known as toluene. Suppose that this is the compound benzene ring. यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है. तो ये टोल्यूइन का हो गया ना ग्रुप. सो इट मे बी नेम्ड एज ऑर्थो डैश क्लोरो टोल्यूइन, यानी ऑर्थो पोजीशन यानी नेबरिंग पोजीशन 1 2. ऑर्थोक्लोरोटोलिन हो गया, ये सही है. और यहां पे जब नाम आता है तो इट मे बी नेम्ड लाइक दिस 1 डैश क्लोरो डैश 2 डैश मिथाइल बेंजीन, और इट मे आल्सो बी कॉल्ड एज 2 डैश क्लोरो टोल्यूइन. टोल्यूइन भी आईपीसी नेम में ओके कहा जाता है. सो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर माय फ्रेंड. ओके, समझ में आ रहा है? इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ओके, suppose that I will write some of the compound in the bond line formula and I will ask you to write the name. तो bond line formula भी हमें पहचान आना चाहिए. इसका नाम देना है. तो इसको पहले विस्तार करके देख लो. यह है Cl, 2 लाइन जंक्शन यानी क्या होता है? CH2. 2 लाइन जंक्शन यानी क्या होता है? CH2. 2 लाइन जंक्शन यानी CH2. ये 1 2 3 लाइन है यानी CH. टर्मिनल इज ऑलवेज CH3. टर्मिनल इज ऑलवेज CH3. टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आर देयर. सो ये आइसो हो गया, आइसो हेक्साइल क्लोराइड.
For this compound, isohexyl chloride 1 2 3 ये आइसो ग्रुप हो गया. 4 5 6 आइसोक्लोरोहेक्सेन. और आईपीसी नाम क्या आएगा? What will be the IUPAC mean? This is carbon number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. 1 dash chloro, 2 dash methyl, 4 dash, I'm sorry. 4 dash methyl pentane. Numbering should be started from nearest end of chlorine for alkane. वो खाली alkene में वैसा है. So even though it is written in the bond line formula, we should be able to recognize that and you can answer that. इसके लिए तो मैंने फंडा 11th के बैच में भी दिया है, आपको भी बता दूंगा. Whenever we shall have terminal bond line formula में, तो टर्मिनल अगर है तो वो क्या होता है? CH3. ये टर्मिनल CH3 हो गया, ये टर्मिनल CH3 हो गया. 2 लाइन का जंक्शन है, then it will be CH2. अगर 3 लाइन का जंक्शन है, 3 लाइंस एक जगह पे मिल रहे हैं, then that will be CH. जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3. ये 2 लाइन जंक्शन CH2, ये 3 लाइन जंक्शन CH. और रेयरली 4 लाइन जंक्शन होता है, तो 4 लाइन जंक्शन के लिए क्या आएगा? C. ओके, तो ये ध्यान में रखो. फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप कहीं भी लिख सकते हो अच्छी तरह से. सो आई होप यू विल फॉलो दिस. फिर एक बार वो रिवाइंड करके देख लो, आपके ध्यान में आ जाएगा. ओके माय फ्रेंड, सो आई होप you are properly understanding all concepts. So do watch the videos again and again to revise that और अच्छी तरह से लर्न करो. अब आगे जाके जब हम और एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ रिएक्शंस देखेंगे, you will feel that everything has been covered nicely. हमारे टॉपिक में CBSE पैटर्न की बुक में जो भी दिया है वो हर एक आर्टिकल में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको. ज़रूर उसका फ़ायदा ले लो. So do like, share and subscribe my channel. Till then, goodbye.